Assalamu alaikum student, Sir Tanveer is here with you. Today we are going to study pressure in liquid, class 9 chapter 7. फिजिक्स का चैप्टर 7 क्लास 9 का, जिसमें हमने प्रेशर इन लिक्विड पढ़ना है. तो स्टूडेंट, अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड में सबमर्ज होती है या बॉडी किसी लिक्विड के अंदर मौजूद होती है, तो लिक्विड जो उस बॉडी के ऊपर होता है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो आज हम यही फाइंड करेंगे कि कोई बॉडी अगर किसी लिक्विड में सबमर्ज है, डूबी हुई है, तो उसके ऊपर लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है. लेट मी टेक अ सिलेंडर. हमने ये एक बड़ा सिलेंडर लिया, ग्लास सिलेंडर, शीशे का सिलेंडर लिया. इसमें हमने एक बॉडी रखी जिसका सरफेस एरिया A है. इस बॉडी का मास M है. हमने एक बॉडी ली है जिसका मास M है, सरफेस एरिया A है. इसको हमने ग्लास के सिलेंडर के अंदर रख दिया. अब इस सिलेंडर को हमने वाटर से फिल कर दिया. ये इस बॉडी के हाइट H हाइट तक इस बॉडी के ऊपर H हाइट तक लिक्विड जो है अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. ये बॉडी H हाइट तक इसके लिक्विड के अंदर सबमर्ज हुई है अंडर द डेप्थ H ड्यू टू इट्स वेट. अब ये बॉडी नीचे को मूव कर रही थी, इस लिक्विड में डूब रही थी. वो वजह क्या थी? इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी. वो फोर्स इसका अपना वेट था. अपने वेट की वजह से ये बॉडी ऊपर से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही थी. अब इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था, P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था लिक्विड. बॉडी नीचे को मूव कर रही थी. W फोर्स जो इसका वेट है, WmG. mg जो वेट था इसका अपना बॉडी का, उस वेट की वजह से बॉडी नीचे को मूव कर रही थी. और ऊपर जो प्रेशर लग रहा था लिक्विड का, वो प्रेशर P है. अब हम फाइंड करते हैं कि ये P प्रेशर जो इसके ऊपर एक्सर्ट हुआ था वो कितना था. लेट वी टेक, एज वी नो, डेंसिटी. डेंसिटी इज mass पर यूनिट वॉल्यूम. स्टूडेंट, एज वी नो, डेंसिटी इज इक्वल टू mass पर यूनिट वॉल्यूम. Here is the liquid is water, so the density of the water is rho. Symbolically, it is represented by a Greek letter rho. ये एक ग्रीक लेटर है जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं रो. रो से हम इसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड. सो द डेंसिटी जो है, अगर यहां से हमने मास फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे. मास एग्जैक्टली इक्वल होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई
density. So the putting the value of the mass m equal volume. Here we can calculate the volume of the objects from its surface area and height. So by multiplying the surface area A with height h, that is the volume. सरफेस एरिया ए को h हाइट से मल्टीप्लाई करें तो उस बॉडी का वॉल्यूम निकल आएगा. तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज द a multiply h and density is rho. So the mass is ah rho. As we know, this is the equation number 1. As we know, Newton's second law, F is equal to mg. Mg, what is the mg? Mg here is the weight of the body, which is only the force acting on the body, due to which body is submerging under the water. So only the weight of the body is the force. Now here is the mg, that is the force acting on the body. We calculate here the force F. For calculating the force, putting the value of m from here, from equation 1, we put the value of m. Ah rho, this is the value of m multiply g. So the force is Ah rho g. This is second equation. Now we find the pressure. By the definition of pressure is equal force per unit area. As we know, pressure is equal force per unit area. This is the value of force. From equation 2, we put the value of force here. So pressure will be Ah rho g over A. This is the force, value of force Ah rho g. From this equation we have put it the value of force. So by cutting area with area, only rho gh left. So the rho gh, this is the pressure exerted by the liquid on the body. So from this equation we can calculate the pressure exerted by the liquid, either water or any other liquid on the body, which can be calculated by putting the value of rho gh. So the rho is the density of that liquid. If it is water, so it could be 1000 centimeter cube per meter cube. So value of g is 10. H height, we can measure the height from here by scale. So by measuring this value and putting this value and then multiplying the value, we can calculate the pressure exerted by the liquid on that object. So here this is the pressure exerted by the liquid on the body, which is placed in the liquid. So student, आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी आपके हो तो आप ज़रूर इसका क्वेश्चन करें, ताकि आपका लर्निंग प्रोसेस और बढ़ सके. और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो है हमारा पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन. नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे. अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो भी मिलती रहें. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. ओके, अल्लाह हाफिज़.